Okay, students, now we discuss ISC Biology 2019 suggestions unit-wise and sub-unit-wise, right? Like I told you that your first unit is reproduction, and in reproduction you have 4 subunits. Now in subunit 1, which is reproduction in organisms, these are the questions or these are the topics which I find important. Now all of these pages I have created a PDF out of it, and I have given the link in the description box. Please go to the PDF, please go to the link, download the PDF, and you can refer and you can get all these questions in hand. So it will be pointless of you copying and not paying attention to what I am saying. So please have a look. Question number 1 of reproduction in organisms, we have asexual reproduction. Asexual reproduction में क्या क्या important है? You have to learn binary fission in amoeba and paramecium. Now there is this diagram of binary fission in amoeba. Please practice that diagram as well. And the same thing I would say for hydra. For hydra and yeast, the asexual mode of reproduction is budding, as we know. Now question पूछने का एक तरीका होता है. They might ask you, give an example of budding in animal kingdom and give an example of budding in yeast. ठीक है? So animal kingdom कभी भी पूछेगा, याद रखना hydra is an animal. Hydra is an animal. So कभी भी पूछेगा कि एक budding का example दो from animal kingdom. Please do not go for yeast, because yeast is not an animal. Yeast falls into kingdom fungi. So please pay attention to this. And of course, yes, diagram of budding in yeast and diagram of budding in hydra, both are very important. They are very simple diagrams. Okay, it will hardly take 10-20 seconds for you to draw it. So please illustrate your answers with diagrams. Now this is again a very important, again I'm remembering all these important stuffs in bits and pieces. Like diagram अगर नहीं भी पूछा है और अगर diagram बनाने में 10 to 15 seconds लगता है, तो why not? Please supplement your answers with diagrams, because it creates a very good impression to the examiner जो आपका पेपर चेक कर रहा है. ठीक है? Because आपको बायो सॉल्व करने के लिए 3 घंटा मिलता है, which I think is more than enough. ठीक है? केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथमेटिक्स में 3 घंटा कम लगता होगा या 3 घंटा सफिशिएंट लगता होगा, बट बायोलॉजी में इट इज मोर देन सफिशिएंट. Right? You can finish your paper within 2 hours if you write efficiently and if you manage time. Okay, so supplementing your answers with diagram is a very good option in order to utilize your total 3 hours, because it will give you an added advantage बाकी सारा students के comparison में. So we discussed binary fission in amoeba, paramecium. We discussed budding in yeast and hydra. Next thing is vegetative propagation. You know what is vegetative propagation? Okay, so vegetative propagation का ये 3 examples बहुत अच्छा से करके जाइएगा. Rhizome of ginger, bryophyllum. Okay, bryophyllum का भी diagram बहुत important है, because we know that vegetative reproduction in bryophyllum takes place from the leaves. Right, so that diagram is again important. And then we have bulb of onion. ये 3 को अच्छा से पढ़ के जाइएगा यहाँ से. Next we have senescence. What do you mean by senescence? Definition of senescence: unusual flowering phenomenon. ये 2018 में भी आया था. ठीक है, तो इसको ऐसा नहीं है कि 2018 में आ गया है तो यहाँ नहीं आएगा. Of course there are certain things like diagrams and all जो ये लोग repeat नहीं करते हैं, and broad questions जो ये लोग repeat नहीं करते हैं. But 1 markers, I think it is very stupid of people to leave them, because they are easy to learn, number 1, and number 2, they are frequently repeated in all the years. Right? So एक बार देख लीजिएगा senescence को और unusual flowering phenomenon को. Next you have seasonal breeding in animals with examples. Then we have, yes, now this is again very important. It was there in your specimen paper as well. They had asked you onion का chromosome number. So जैसे हम लोग जानते हैं कि human being का chromosome number कितना होता है? 46. 46 को हम लोग कैसे लिखते हैं? 23 pairs में लिखते हैं ना? तो वैसे ही similarly you have to remember about housefly, fruit fly, butterfly. Of course human को तो पता होना ही चाहिए. You have rat, dog, maize, apple and
अनियन। ये सब का आपको क्या लर्न करना है? आपको क्रोमोसोम नंबर लर्न करना है। सोमैटिक सेल्स में ऑफ कोर्स वी नो दैट द सोमैटिक सेल्स आर डिप्लॉयड इन नेचर, दैट इज बाय 2n। एंड यू हैव गैमीट्स। गैमीट्स में कितना होता है? ऑफ कोर्स जैसे ह्यूमन बीइंग का बात करें तो ह्यूमन बीइंग का सोमैटिक सेल्स में कितना होता है क्रोमोसोम्स? 46। और गैमीट्स में कितना होता है? 23। सिमिलरली हाउस फ्लाई, फ्रूट फ्लाई, बटरफ्लाई, रैट, डॉग, मेज, एप्पल, अनियन सबका हाफ हो जाता है गैमीट्स में, एंड दैट इज व्हाई आई हैव रिटन n which is a symbol of haploid, okay, and this is the symbol of diploid. please अच्छा एक और चीज, understand your basics carefully, ठीक है? what do you mean by diploid, what do you mean by haploid, etc. they might ask you this as well. Next is difference between external and internal fertilization. Please make tables while writing your differences. Do not write in paragraphs. It creates a very bad impression towards the examiner ke you do not present your work nicely. So please make a table and write your differences. Now number of differences. अब students पूछते हैं कितना differences लिखने से अच्छा होगा? याद रखना यूजुअली ICSE एंड ISC फॉलो दिस पैटर्न कि अगर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो यू शुड राइट 2 पॉइंट्स, बट आई वुड सजेस्ट यू राइट 1 और 2 एक्स्ट्रा, ठीक है? अगर मान लो 2 मार्क्स का है, यू बेटर गो फॉर 3 पॉइंट्स और 4 पॉइंट्स, डू नॉट राइट 2 पॉइंट्स ओनली। ऑफ कोर्स अगर ऐसा हो सकता है कि इसका 2 ही पॉइंट्स है डिफरेंस का, दैट इज अनदर इशू, सेपरेट इशू, बट इफ यू हैव पॉइंट्स इन माइंड, लाइक आई टोल्ड यू, बायो में बहुत ज्यादा टाइम मिलता है आंसर करने के लिए, तो यू शुड मेक यूज ऑफ योर टाइम। वो जो 15 मिनट्स मिलता है ना तुम लोग को अब पेपर रीड करने के लिए, उसका एफिशिएंट यूटिलाइजेशन करो। डू नॉट जस्ट सिट एंड गॉसिप एंड सी व्हाट अदर पीपल आर डूइंग एंड ऑल। यू शुड ऑलवेज स्टिक टू योर क्वेश्चन पेपर, आईज शुड बी ऑन योर क्वेश्चन पेपर, यू शुड सेलेक्ट योर चॉइसेस। ऑफ कोर्स चॉइसेस बहुत कम है, इंटरनल चॉइसेस ही है, उसमें ही केयरफुली आप सेलेक्ट करो कि आप क्या करोगे नहीं। सेक्शन सी को देखो केयरफुली, 5 मार्क्स का है, उसको सेलेक्ट करो कि कैसे अच्छा से करना है, कौन सा क्वेश्चन करना है। जो ब्रॉड क्वेश्चन है उसका आप अपना आंसर स्क्रिप्ट में एक रफ वर्क बना के पॉइंट्स जॉट डाउन कर लो कि लिखते वक्त आपको आराम मिले। बोलने का मतलब ये है कि वो 15 मिनट्स एफिशिएंटली यूटिलाइज करो बॉर्डर्स ड्रॉ करने के लिए, क्वेश्चन सेलेक्ट करने के लिए और प्लानिंग, लाइक आई टोल्ड यू इन द अर्लियर minutes of the video कि planning is really important in order to get really good marks. Next we come to difference between external and internal fertilization. I told you is important. Parthenogenesis क्या होता है? Definition of parthenogenesis along with example is important. Next we come to your subunit B of reproduction, which is sexual reproduction in flowering plants. Your important topics are double fertilization, triple fusion, apomixis, parthenocarpy, polyembryony, etc. You should also go for what do you mean by cleistogamy, geitonogamy and xenogamy. ठीक है, ये सब क्या है, इसका definition, few examples are very very important. Parthenocarpy again I have written. Of course it is not because I wanted it to be there, because it's just a mistake, and but it is really important. Parthenocarpy is important. Next we come to human reproduction. Now human reproduction is a very very important section. In my opinion, the most important section of this unit, reproduction. Of course reasons, because human reproduction is so important. We are less concerned with other organisms, more concerned with ourselves. So testis का डायग्राम आ चुका है 2018 में, testis का डायग्राम आ चुका है। प्लीज testis का डायग्राम को प्रैक्टिस मत कीजिएगा। You have other diagrams to practice from this chapter. This chapter is a very diagram oriented chapter, so you have to learn the diagram of the sperm and ovum. This is really important. You also have to learn the diagram of योर ओवरी का इंटरनल स्ट्रक्चर का डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और स्पर्म एंड ओवम का डायग्राम तो नीडलेस टू से इट इज रियली इंपॉर्टेंट. सो डू नॉट प्रैक्टिस टेस्टिस, प्लीज प्रैक्टिस ओवरी, प्रैक्टिस स्पर्म एंड प्रैक्टिस ओवम अलॉन्ग विथ प्रॉपर लेबलिंग. नेक्स्ट यू हैव स्पर्मेटोजेनेसिस एंड oogenesis का स्टेप्स. ठीक है, क्या क्या होता है स्टेप्स में. व्हाट डू यू मीन बाय स्पर्मिएशन. स्पर्मिएशन इस साल इंपॉर्टेंट है, स्पर्मिएशन को देख लीजिएगा. स्पर्मिएशन का डेफिनेशन क्या होता है. नेक्स्ट कम्स प्लासेंटा. नाउ प्लासेंटा, आई थिंक कि प्लासेंटा इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बेसिकली पूछता है कि प्लासेंटा का फंक्शन क्या है. एक तो प्लासेंटा का फंक्शन होता है वही, इट एक्ट्स एज अ कनेक्शन बिटवीन द फीटस एंड द मदर. इट गिव्स ऑल द गुड कंपोनेंट्स लाइक ग्लूकोज,
amino acids, etc., all the nutrients to the babies, and it takes away all the excretory materials, carbon dioxide, etc., from the baby. So this is the basic function of the placenta. They can ask you what are the hormonal roles of placenta. There are several hormones which is secreted from the placenta. प्लीज़ इसको थोड़ा देख लीजिएगा अच्छा से प्लेसेंटा को. नेक्स्ट इज menstrual cycle, the four steps or the four stages of the menstrual cycle. So the events and the hormones which are associated with the menstrual cycle, please देख लीजिएगा इसको क्या होता है. Next is menarche and menopause. Now, what is menarche? What is menopause? Menarche is the onset of menstrual cycles in young girls, and menopause is the permanent stoppage or permanent, you put a stop to the menstrual cycles, which happens at around 45 to 50 years in case of females. The last one is hormone and lactation. Now, lactation is the act or the production of milk in the female mammary gland after the delivery of the baby. Now, of course, this is brought about by the role of several hormones. You have to learn the different hormones and their roles in accordance to lactation. Lactation में कैसे करके help करता है ये सारा hormones. ठीक है? Coming to the last subunit of your first unit, which is reproduction, which is reproductive health. Now, in reproductive health, basically, it is a general awareness chapter in which you are informed about the overgrowing population in our country and how can we help in order to check that population explosion. So in that regard, you have to learn about the different contraceptives, and before contraceptives you should know what do you mean by the idea of contraception, right? Contraception or preventing pregnancy. Now, it can be done in several ways. You have to learn all the several ways which is prescribed in your syllabus and in your book. Important one is surgical method. Surgical method में दो आता है, one which is performed in male and one which is performed in female. The one which is performed in male is vasectomy, and one which is performed in female, it is ट्यूबेक्टोमी. सो वसेक्टोमी, ट्यूबेक्टोमी दोनों आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, एंड सिर्फ लर्न नहीं करना है, इसका डायग्राम भी देखना है. डायग्राम भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है यहाँ से, विच वन डू यू थिंक और डू यू प्रेफर इज ईजियर टू परफॉर्म? द आंसर इज डेफिनेटली वसेक्टोमी इज ईजियर टू परफॉर्म बिकॉज इट कैन बी डन इन ओनली अ मैटर ऑफ मिनट्स. द पेशेंट कैन गो ईजिली होम एंड at the same day. There is no blood loss, there is no operation sort of. ठीक है, so इसलिए ये ज़्यादा easy होता है, easier to perform, and it is easier on the budget as well. The next is you have MTP. What do you mean by MTP? MTP का मतलब होता है medical termination of pregnancy, or otherwise in layman's language we call it abortion. Right? So abortion कब तक successfully किया जा सकता है? It's 12 weeks of pregnancy, and why is it the option for last resort? ठीक है, क्यों इसको option? There are several reasons prescribed in your book, given in your book. देख लीजिएगा कि इसको last resort क्यों बोला जाता है. Because of course killing a fully developed fetus is not as easy as killing just embryo or just preventing sperm and ovum to meet. Right? So next step is amniocentesis. What is amniocentesis? Very very important, I would say, for your examination. क्या होता है amniocentesis? इसका concept explain करना in this short span of time is really difficult, so please go and check it in your book. It is very much there. Basically, you take a part of the amniotic fluid out with the help of injection, USG. You check the amniotic fluid for any problems with the baby, etc. So that is amniocentesis. Next is assisted reproductive technology, in vitro fertilization, IUT, ZIFT, ICSI and GIFT. So ये सब जो क्या है ना, ये आपका अगर आप स्पेसिमेन पेपर अपना देखेंगे तो इसमें आपको ये सारे एब्रीविएशंस का फुल फॉर्म लिखने के लिए आया है. तो फुल फॉर्म तो लर्न कीजिएगा ही ये सारा चीज़ का, बट उसके साथ एक दो लाइन्स अगर याद आप अगर कर लेते हैं, सो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी इट्स अ वेरी बेनिफिशियल विन विन सिचुएशन. बिकॉज अगर ये एब्रीविएशन से नहीं आया, ठीक है, स्पेसिमेन पेपर में दिया हुआ एब्रीविएशन, हैप्पीली हम लोग गए एब्रीविएशन पढ़ के जा, एब्रीविएशन तो आया ही नहीं, क्या आ गया? इससे 1 और 2 मार्कर का क्वेश्चन आ गया.
ठीक है, अब क्या करेंगे, वील स्टार्ट टू पैनिक। सो इसी के लिए क्या करना है, हमें पूरा इसका फुल फॉर्म्स को देख लीजिएगा अलॉन्ग विद द फुल फॉर्म्स। प्लीज रीड, आई वुड नॉट से मग अप, जस्ट रीड 1-2 लाइन सो दैट अगर जरूरत पड़े तो आप आंसर्स लिख सकते हैं। नेक्स्ट इज आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। क्या होता है, किन कपल्स को आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन का जरूरत पड़ता है, व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट इज द हार्म, प्लीज एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। देन इज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, एसटीडीज, व्हाट आर द कॉजेज, व्हाट आर द प्रिवेंशंस, गोनोरिया व्हिच इज कॉज्ड बाय नीसीरिया गोनोरियाe, सिफिलिस कॉज्ड बाय ट्रेपोनेमा पैलिडम, एड्स कॉज्ड बाय ऑफ कोर्स एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ये सारा का आपको कॉजल ऑर्गेनिज्म इसका लर्न करना है, हाउ इट इज स्प्रेड from an infected person to a healthy individual, and what are the steps, what are the preventive measures as to how can we stop or limit the number of people affected by gonorrhea, syphilis, AIDS, etc. There are many sexually transmitted diseases in your syllabus, hepatitis is also there, etc. But we feel that gonorrhea, syphilis and AIDS are really important. Please remember that it is a viral disease, AIDS is a viral disease, and both gonorrhea and syphilis are bacterial disease. Name of the bacteria is important, like I told you. Gonorrhea is caused by Neisseria gonorrhoeae and syphilis is caused by Treponema pallidum. Now this brings us to the end of the first unit. A brief description or the important topics from the first unit. We will shortly talk about the second unit as well. Okay, your second unit is genetics and evolution. Genetics and evolution is subdivided into 3 subunits, which you can see. Subunit A or subunit 1 is principles of inheritance and variation. Now in principles of inheritance and variation, सबसे पहले मैं बता दूं कि मेंडल का वो जो दोनों क्रॉसेस है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाइहाइब्रिड क्रॉस, the different laws, different ratios, etc. all of them you have to do it properly. इसलिए मैंने वो लिखा ही नहीं है, बिकॉज ये क्लास 10 में भी था आपके, और ये दिस इज एक्सपेक्टेड ऑफ ऑल बायोलॉजी स्टूडेंट्स टू एटलीस्ट नो व्हाट इज मोनोहाइब्रिड, डाइहाइब्रिड क्रॉसेस, द डिफरेंट रेशियोज, फिनोटाइपिक, जीनोटाइपिक रेशियोज एसेट्रा। तो इसलिए मैंने मेंशन वो नहीं किया है, बट प्लीज़ आप एक बार उसको भी रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, ट्रांजिशन के पेज में जेनेटिक्स का वीडियो भी है, आप वहां से भी जाके जेनेटिक्स का वीडियो को आराम से देख सकते हैं, विच इज ऑफ योर बेसिक क्लास 10 ICSE level. Now coming to principles of inheritance and variation, the first thing you have to do is deviation of Mendel's law. ये जो incomplete dominance और codominance है ना, ये मेंडल का लॉ को फॉलो नहीं करता है, और इसी के लिए ये हमारा एक important question बन जाता है। Incomplete dominance, I am sure you must be knowing about 4 o'clock plant, Mirabilis jalapa. ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिया हुआ आपके बुक में, प्लीज इसको एक बार देख लीजिएगा। व्हाट इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस डेफिनेशन अलोंग विद द क्रॉस एंड द रेशियो ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस, द फिनोटाइपिक रेशियो एंड द जीनोटाइपिक रेशियो इज बोथ द सेम। तो दिस इज वन रिमार्केबल ऑब्जर्वेशन। तो आप लोग ऐसे ही करके पढ़ सकते हैं, मेक इट इंटरेस्टिंग। इनकम्प्लीट डोमिनेंस को पढ़िए, को डोमिनेंस को अच्छा से पढ़ लीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय प्लियोट्रॉपी? प्लियोट्रॉपी का मतलब होता है पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। Okay, so not just one pair of genes are bringing about a change in your body, there are several genes whose cumulative result is a definite like proper characteristic in your body. So प्लियोट्रॉपी का एक एग्जांपल तुम्हारे बुक में दिया हुआ है, स्किन कलर। स्किन कलर का ये वाला क्रॉस बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c। So it's basically a tri-hybrid cross. तो ये ट्राई हाइब्रिड क्रॉस को करके देयर विल बी 64 आउटकम्स, सो इट बिकम्स अ रियल डिफिकल्ट थिंग। सो ये क्रॉस पूरा अगर आप नहीं भी कीजिएगा तो भी चलेगा, बट एक बार इसको देख लीजिए, उतना भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, 5 से 10 मिनट अगर आपको लगता है इसको इन्वेस्ट करने में, देयर इज नो हार्म। ठीक है, इसको एक बार आप देख सकते हैं। उसके बाद सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमंस, फ्रूट फ्लाई, बर्ड्स, हनी बी एट्सेट्रा। तो ह्यूमंस एंड फ्रूट फ्लाई का तो अपना बहुत इजी होता है। ह्यूमन मेल इज XY हेटेरोगैमेटिक, ह्यूमन फीमेल इज XX। ये दोनों एलोसोम्स होता है, मैंने एलोसोमल रिप्रेजेंटेशन किया है। ये दोनों को आप क्रॉस करके इसका मियोसिस करा के और फिर फर्टिलाइजेशन करा के आराम से कर सकते हैं। ठीक है, बर्ड्स में क्या होता है? बर्ड्स में इट इज द फीमेल विच इज heterogametic. What we can see is ZW.
they are the allosomes for birds. And what we can see is the female is heterogamitic. Heterogamitic का मतलब आई एम श्योर तुम लोग को पता होगा. हेट्रोगैमेटिक का मतलब होता है कि एलोसोम्स दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग है. इसी के लिए मेल्स को हम लोग हेट्रोगैमेटिक बोलते थे, फीमेल्स को हम लोग होमोगैमेटिक बोलते थे in the case of humans and fruit fly. But in case of birds, the female are heterogametic and males are homogametic. We can see both the allele, both the genes of the allele, they are same, and that is why it is called homogametic. In case of honeybee, the process is called haplodiploidy. तो इसको भी एक बार देख लीजिएगा, ये होता क्या है, इसका definition and what is the process. उसके बाद दो important crosses आता है, which is back cross and test cross. back cross and test cross आपके वो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस करने के बाद बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस किया जाता है. ये बैक क्रॉस और टेस्ट क्रॉस क्या होता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है, एंड व्हाट आर द रेशियो. एक्चुअली टेस्ट क्रॉस इज अ पार्ट ऑफ बैक क्रॉस. बैक क्रॉस का मतलब होता है कि जो प्रोजेनी है उसको अगेन पेरेंट्स के साथ उसका मेटिंग किया जाए, ठीक है. और टेस्ट क्रॉस में रिसेसिव पेरेंट्स के साथ अगर उसका क्रॉस किया जाए प्रोजेनी का, तो उसको बोलते हैं टेस्ट क्रॉस, ठीक है. सो व्हाट इज टेस्ट क्रॉस? टेस्ट क्रॉस इज द क्रॉस ऑफ द प्रोजेनी विद द रिसेसिव पेरेंट. एंड बैक क्रॉस क्या होता है? इट इज जस्ट द क्रॉस ऑफ द प्रोजेनी विद एनी पेरेंट, बी इट रिसेसिव, बी इट डोमिनेंट, ठीक है. तो टेस्ट क्रॉस इज अ स्पेशल केस ऑफ बैक क्रॉस. इसको एक बार पढ़ लीजिएगा. व्हाट डू यू मीन बाय लिंकेज? लिंकेज क्या होता है, लिंकेज का डेफिनेशन. क्रॉसओवर क्या होता है, क्रॉसओवर का भी डेफिनेशन एक बार देख लीजिएगा. नेक्स्ट कम्स म्यूटेशन. अब म्यूटेशन क्या होता है? म्यूटेशन का बाय डेफिनेशन, इफ आई डिफाइन म्यूटेशन इन अ वेरी लेमैन्स लैंग्वेज, तो म्यूटेशन इज एनी चेंज इन द क्रोमोसोम और द डीएनए. We know DNA is the blueprint of the body. If there will be any change in the DNA, ठीक है, so there will be a change in the characteristics of the individual, right? So that is why mutation is important and we are studying mutation. So definition of mutation is really important, ठीक है. म्यूटेशन कितना टाइप का होता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. फर्स्ट टाइप ऑफ म्यूटेशन इज कॉल्ड पॉइंट म्यूटेशन. पॉइंट म्यूटेशन का मतलब होता है सिंगल न्यूक्लियोटाइड, एक न्यूक्लियोटाइड का चेंज हो गया डीएनए सीक्वेंस में. इसका पॉइंट म्यूटेशन कैन बी सबडिवाइडेड इनटू ट्रांजिशन एंड ट्रांसवर्जन. ट्रांजिशन और ट्रांसवर्जन क्या होता है? ऑफ कोर्स दिस इज नॉट दिस ट्रांजिशन व्हिच यू कैन सी. ट्रांजिशन का मतलब होता है कि आइदर प्यूरिन विल बी replaced by purine, a purine base. Purine base क्या होता है? adenine and guanine. So purine अगर suppose adenine है sequence में, it will be replaced by guanine. So this is a point mutation because a single nucleotide is getting changed. But why are we calling it transition? Because purine is replaced by purine. Similarly, suppose अगर pyrimidine है cytosine and guanine. Suppose अगर sequence में cytosine है, if it is replaced by guanine, then again it is a case of transition. Right? Transition का मतलब होता है purine will be replaced by purine, pyrimidine will be replaced by pyrimidine. Then there is something called transversion as well. Transversion का मतलब होता है a purine will be replaced by pyrimidine and a pyrimidine will be replaced by a purine. Suppose adenine है तुम्हारे original DNA sequence में, you are replacing it with cytosine or you are replacing it with guanine, ठीक है. Then it is a case of transversion. So transition ट्रांसवर्जन के बीच में differences पूछ सकता है. Next is what is frame shift mutation. Frame shift mutation important इसलिए होता है क्योंकि it can cause premature termination of the translation. Now you know what is translation, right? Translation is the process where mRNA is converted into protein. Now अगर DNA में कोई प्रॉब्लम रहेगा, DNA का फ्रेम जो होता है ना कोडॉन्स का, three nucleotides make up a codon in a mRNA. We have learned central dogma, right? तो वो central dogma का वो जो frames होता है वो अगर shift अगर हम लोग कर देते हैं या हो जाता है अपने से, तो उसके वजह से प्रोटीन जो ट्रांसलेट होता है mRNA से, वो प्रोटीन इम्प्रॉपर होगा, वो प्रोटीन प्रॉपर नहीं होगा. तो फ्रेम शिफ्ट को एक बार देख लीजिएगा. देन वी हैव चेंजेस इन क्रोमोसोमल नंबर. नाउ हमने बताया था कि हर एक इंडिविजुअल का अपना एक
पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, पर्टिकुलर सेट ऑफ क्रोमोसोम नंबर भी होता है। तो अगर वो क्रोमोसोम नंबर में चेंज आ जाए तो वो चेंज दो टाइप का हो सकता है, एक को बोलते हैं यूप्लॉइडी, दूसरा को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। यूप्लॉइडी का मतलब होता है देयर विल बी चेंजेस इन द टोटल सेट्स ऑफ द क्रोमोसोम। सपोज देयर इज अ मोनोडिप्लॉइड क्रोमोसोम n, ठीक है, अगर इसका पूरा एक डुप्लीकेशन हो जाए, एक पूरा इसका एक और जेरोक्स कॉपी आ जाए तो इट विल बिकम डिप्लॉइड, इट विल बिकम 2n। अगर वैसा वैसा 3 जेरोक्सेस आ जाए तो इट विल बिकम 3n। तो these are the changes with respect to the entire set of chromosome. And what is aneuploidy? Aneuploidy का मतलब होता है, suppose you have 2n number of original chromosomes, 2n plus 1 अगर हो जाए तो ये तो पूरा सेट ऑफ क्रोमोसोम फिर से नहीं ना आ रहा है, यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस को बोलते हैं एन्यूप्लॉइडी। Aneuploidy can be monosomy, trisomy, tetrasomy, etc. Now talking about all of these, ये सब पढ़ने के बाद आप लोग को ये 3 डिजीजेस, ये 3 सिंड्रोम्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। डाउन सिंड्रोम, which I think you all are very much familiar with, it's a very common term, Down syndrome, Klinefelter syndrome and Turner syndrome। ये तीनों सिंड्रोम को एक बार देख लीजिएगा, पूछने का चांसेस है आपके एग्जाम में। Next we come to molecular basis of inheritance. This is your entire molecular biology section. Now molecular basis of inheritance में सबसे पहला चीज जो आप लोग को देखना है वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट, हर्शी एंड चेज एक्सपेरिमेंट, मेसलसन एंड स्टाल्स एक्सपेरिमेंट। नाउ व्हाई आई एम टेलिंग कि एक और एक्सपेरिमेंट है which came in your 2018, ठीक है, वो आपका, एक मिनट मैं बता रहा हूं कि वो जो एक्सपेरिमेंट है वो दैट केम इन योर, ऑलराइट, सो एक्चुअली आई वाज जस्ट चेकिंग आउट कि वो एक्सपेरिमेंट कौन सा था। वो एक्सपेरिमेंट आपके सेक्शन सी में आया था। अगर आप 2018 का क्वेश्चन पेपर क्लोजली चेक करोगे तो सेक्शन सी में देयर इज दिस क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 में एक क्वेश्चन आया था, डिस्क्राइब मैक्लॉयड, मकाटी एंड एवरीज एक्सपेरिमेंट एंड स्टेट इट्स सिग्निफिकेंस, ठीक है। सो ऑफ कोर्स दिस इज दैट फेमस एक्सपेरिमेंट इन ऑर्डर टू चेक विच इज द जेनेटिक मटीरियल। तो वो वाला एक्सपेरिमेंट तो इस बार नहीं आएगा, बिकॉज आई टोल्ड यू ब्रॉड क्वेश्चंस का बहुत रेयर चांसेस होता है रिपीट करने का। तो इसी के लिए आप लोग देख लीजिए ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट on transformation, Hershey's and Chase experiment for to identify whether it is the protein or the DNA which acts as the genetic material. This is that radioactivity wala experiment where you add radioactivity in where you add radioactive sulfur and radioactive phosphorus in order to understand which is the genetic material. It's there in your book, please see it. It's there in NCERT as well. And Melson's and Stahl's experiment in order to check whether replication is semi-conservative, conservative, etc. तो ये वाला एक्सपेरिमेंट को देख लीजिएगा। नेक्स्ट कम्स शारगैफ्स रूल्स, ठीक है। शारगैफ का क्या रूल था उसको देख लीजिएगा कि AT और GC का रेशियो के बारे में एक रूल है विच इज देयर इन योर बुक, ठीक है। शारगैफ रूल के ऊपर बहुत सारा सम्स पूछा जाता है, यस। सो देयर आर सर्टेन स्मॉल न्यूमेरिकल्स, ऑफ कोर्स नॉट एज ह्यूज एज फिजिक्स एंड मैथ्स, they are very basic numericals which can come on Chargaff's rules. Now numericals on this chapter can also come on the length of the DNA, number of nucleotides per turn of the DNA helix. Now we know there are basically 3 types of DNA, your A DNA, B DNA and Z DNA. तो A, B और Z DNA का आपको देखना पड़ेगा, इसका लेंथ कैसे करके कैलकुलेट किया जाता है, कितना नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स पर टर्न होता है, इट्स वेरी मच देयर इन योर बुक। तो ऑफ कोर्स आपको एक सर्टेन लेंथ ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स दे देगा, बोल देगा नंबर ऑफ हेलिक्स फाइंड करो, कितना नंबर ऑफ टर्न्स हुआ है, या दोनों बेसिस के बीच में डिस्टेंस कितना है, दोनों स्ट्रैंड्स ऑफ DNA, जो 2 स्ट्रैंड्स ऑफ DNA होता है, एक स्ट्रैंड को बोलते हैं पैरेलल, दूसरा को बोलते हैं एंटी पैरेलल, दोनों के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो ये सारा पैरामीटर्स के ऊपर सम से पूछ सकता है। नेक्स्ट वी हैव टाइप्स एंड फंक्शंस ऑफ RNA. We know there are several types of RNA as well. You have mRNA, rRNA, tRNA, microRNA, snRNA, बहुत सारा RNA होता है। तो इसका आपको फंक्शंस लर्न करना है और इसका टाइप्स लर्न करना है। नाउ नेक्स्ट कम्स अ रियल इंपॉर्टेंट स्टफ विच इज रेप्लिकेशन। 2018 में आपका आया था ट्रांसक्रिप्शन के बाद का जो इवेंट, उसको बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ mRNA। तो 2018 में पूछ चुका है कि ट्रांसक्रिप्शन के बाद का इवेंट्स जो होता है, कैपिंग,
पॉलीएडेनाइलेशन, स्प्लाइसिंग, ये सब पूछ चुका है। तो इस बार वो सब आने का चांसेस नहीं है। वो एक्चुअली मैंने आपको बताया था ना कि और वाला क्वेश्चन इंटरनल चॉइसेस वाला देता है। तो क्वेश्चन नंबर 16 में क्या था? क्वेश्चन नंबर 16 में वो वाला एक्सपेरिमेंट था, मैक्लॉयड मकाटी एवरी वाला एक्सपेरिमेंट, और उसके साथ और दिया था पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन वाला क्वेश्चंस का। तो आप लोगों ने देखा ना कि एक ही चैप्टर से वो लोग क्वेश्चंस और में देते हैं, ताकि इफ यू लीव मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस यू आर श्योर टू लीव सम मार्क्स and it will not be a good situation for you. So इसी के लिए do not leave any chapter. Now since post transcriptional modification has already come, we will talk about replication and transcription. ये दोनों का steps आप लोग को by heart learn होना चाहिए। Next we come to features of genetic code. Genetic code का क्या क्या features होता है। उसके बाद you need to understand what are introns and exons. What are introns and exons? Introns and exons क्या होता है? जो DNA का ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो mRNA बनता है, वो mRNA का पूरा mRNA का जो पूरा सेक्शन होता है वो प्रोटीन सिंथेसिस में जरूरत नहीं होता है। उसके अंदर there are certain junk RNA which is called introns. So you have to remove all the introns and only the exons take part in translation, which is the last step of central dogma. Right? So introns को remove करना पड़ता है, exons join होता है, और उसके बाद क्या बन जाता है? mature mRNA बनता है which takes part in translation. तो इसी के लिए यही प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग पूछ चुका है यहाँ पे। पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन के में क्या क्या इवेंट्स होता है, उसमें से एक स्टेप होता है स्प्लाइसिंग, वो पूछ चुका है। तो इस बार पूछने का चांसेस है व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रॉन्स एंड एक्सॉन्स, या दोनों के बीच में डिफरेंस। और क्या पूछ सकता है व्हाट डू यू मीन बाय कोडॉन। आई टोल्ड यू ना कि वो ट्रिपलेट न्यूक्लियोटाइड्स जो होता है उसको बोलते हैं कोडॉन। ईच कोडॉन कोड्स फॉर अ डेफिनेट अमाइनो एसिड। ठीक है, देर आर ऑल टूगेदर 64 कोडॉन्स। कितना कोडॉन्स होता है? देर आर ऑल टूगेदर 64 कोडॉन्स। अब 64 कोडॉन्स में से ओनली 61 ऑफ देम कोड फॉर अमाइनो एसिड, राइट? दे कोड फॉर अमाइनो एसिड। बाकी का जो 3 होता है दे डू नॉट कोड फॉर अमाइनो एसिड। वो 3 क्या होता है वो मैंने यहां पे लिखा है। क्या क्या होता है वो? UAA, UAG एंड UGA। ये तीनों को हम लोग बोलते हैं टर्मिनेटर कोडॉन। इसका एक और नाम है, इसको बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। क्या बोलते हैं? स्टॉप कोडॉन। ये ट्रांसलेशन में अगर if your ribosomes they encounter that your mRNA sequence has these in them, either of these अगर होगा, वहीं पे ट्रांसलेशन रुक जाएगा, प्रोटीन सिंथेसिस will be stopped। ठीक है, तो UAA को बोलते हैं ओकर, UAG को बोलते हैं एम्बर एंड UGA को बोलते हैं ओपल। ठीक है, ये तीनों ये कोडॉन्स का नाम है। सिमिलरली अगर टर्मिनेटर का आपके पास नाम ये कोडॉन्स दिया हुआ है, वैसा सिमिलरली यू हैव इनिशिएटर कोडॉन एज वेल, जो इनिशिएट करता है ट्रांसलेशन का स्टोरी। ठीक है, तो अगर ये वाला कोडॉन आपके mRNA में होगा, वहां से आपका राइबोसोम प्रोटीन बनाना स्टार्ट करेगा, और अगर ये वाला कोडॉन आपके mRNA में होगा, यहाँ पे the ribosome is going to stop preparing protein. You have to please understand what is the initiator codon and what do you mean by terminator codon. Initiator codon का मतलब होता है वो कोडॉन जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट कराता है, और टर्मिनेटर कोडॉन का मतलब होता है वो कोडॉन जो प्रोटीन सिंथेसिस को हॉल्ट करा दे या रोक दे, खत्म कर दे। ठीक है, तो ये होता है AUG। प्लीज याद रखिएगा, AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन। AUG कोड्स फॉर मेथियोनिन। मेथियोनिन इज अ टाइप ऑफ एन अमाइनो एसिड। मेथियोनिन इज अ टाइप ऑफ एन अमाइनो एसिड। सो हर प्रोटीन का शुरुआती अमाइनो एसिड क्या होता है? मेथियोनिन होता है। उसके बाद अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन इज लैक ओपेरॉन। व्हाट डू यू मीन बाय लैक ओपेरॉन? लैक ओपेरॉन का पूरा डायग्राम आपको याद रहना चाहिए। डायग्राम पूछ सकता है, लैक ओपेरॉन का डायग्राम बना के पूरा एक्सप्लेन करना है। उसमें 3 स्ट्रक्चरल जीन्स होता है, लैक Z, लैक Y, लैक A। ठीक है, तो इसको एक बार देख लीजिएगा लैक ओपेरॉन को। लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑन होता है, लैक ओपेरॉन कब स्विच ऑफ होता है,
पता है ना, लैक्टोज के प्रेजेंस में लैक्टोपेरॉन स्टार्ट होता है, और जब लैक्टोज नहीं रहता है मीडिया में तो क्या होता है, लैक्टोपेरॉन स्टॉप हो जाता है। एक और चीज ध्यान दीजिएगा कि कोई भी साइंटिफिक नेम कभी भी आप लिखें, कोई भी बैक्टीरिया का बोलिए या कोई भी एनिमल का बोलिए, प्लांट का बोलिए, उसको प्लीज अंडरलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। द फर्स्ट इज कॉल्ड द जीनस एंड द सेकंड इज कॉल्ड द स्पीशीज, एस्चेरिचिया कोलाई, ठीक है, उसको अलग अलग से अंडरलाइन कर दीजिएगा। द जेनस शुड स्टार्ट विद अ कैपिटल लेटर, द स्पीशीज शुड स्टार्ट विद अ स्मॉल लेटर, ठीक है। और अगर आप ई डॉट कोलाई लिख रहे हैं तो ई को अलग अंडरलाइन कीजिएगा, कोलाई को अलग अंडरलाइन कीजिएगा। नेक्स्ट इज डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का स्टेप्स क्या होता है, हाउ डज इट हेल्प टू सॉल्व पैटर्निटी एंड क्रिमिनल केसेस, ठीक है। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग करने से पहले सबसे पहले आपको अपना बायोटेक्नोलॉजी क्लियर करना पड़ेगा। बायोटेक्नोलॉजी में यू हैव डीएनए जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, इलेक्ट्रोफोरेसिस को अच्छा से पढ़िएगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस पढ़ने के बाद यू कैन इजीली अंडरस्टैंड व्हाट डू यू मीन बाय डीएनए फिंगरप्रिंटिंग, और डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का क्या क्या हेल्प होता है। Your last subunit of unit 2 is evolution. Evolution में क्या क्या पढ़ना है, ओपरेन हाल्डेन थ्योरी, जो ओपरेन और हाल्डेन दिए थे, और उसको साइंटिफिकली प्रूफ कौन किया था, साइंटिफिकली प्रूफ किया था यूरे एंड मिलर विद देयर फेमस एक्सपेरिमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सपेरिमेंट का डायग्राम भी, ये एक्सपेरिमेंट का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसको एक बार देख लीजिएगा। व्हाट डू यू मीन बाय सीकर वेट्स, व्हाट डू यू मीन बाय होमोलोगस एंड एनालोगस ऑर्गन्स, ठीक है। इसके बीच में डिफरेंसेस भी पूछ सकता है, या आपको होमोलोगस और एनालोगस ऑर्गन्स का एग्जांपल से they can ask you to explain what do you mean by the term homologous and analogous organs. Next you have what do you mean by vestigial organs, very important। vestigial organs का examples, vestigial organs का examples plant में से पूछ सकता है, ह्यूमन बींग्स में से पूछ सकता है, तो वेस्टिजियल ऑर्गन्स का एग्जांपल्स में यू हैव टू बी वेरी वेरी क्रिस्प एंड क्लियर अबाउट, ठीक है। व्हाट डू यू मीन बाय कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक का भी एग्जांपल, और कनेक्टिंग लिंक किस दो के बीच में है, ठीक है। सपोज देयर आर टू सेट्स ऑफ और टू क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स, दोनों के बीच में यू हैव अ कनेक्टिंग लिंक। अब वो कनेक्टिंग लिंक का नाम आपको याद रखना है, और वो कौन दो टाइप का ऑर्गेनिजम्स के बीच में फॉल करता है, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक सिर्फ आप एग्जाम्पल मत लर्न कीजिए, वो किन दो क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिजम्स के बीच में आता है वो भी आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वी कम टू लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल्स के में आपको प्लांट लिविंग फॉसिल, एनिमल लिविंग फॉसिल, दोनों का एग्जाम्पल्स याद रहना चाहिए। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लिविंग फॉसिल्स, ये याद रहना चाहिए। एटॉमिज्म का सिर्फ डेफिनेशन विल डू, बायोजेनेटिक लॉ का सिर्फ लॉ विल डू। प्लीज ये गिव रीजंस में जो आता है ना, एक स्टेटमेंट दिया जाता है और उसको एक्सप्लेन किया जाता है। ऑन्टोजेनी रिकैपिचुलेट्स फाइलोजेनी, दे कैन आस्क यू दिस, और दे कैन आस्क यू एक्सप्लेन द फॉलोइंग लाइन और व्हाटएवर, ठीक है। इट कैन कम फॉर 2 marks और इट कैन कम फॉर 3 marks। व्हाट डू यू मीन बाय लामार्किज्म एंड डार्विनिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। लामार्क obviously proposed Lamarckism and Charles Robert Darwin proposed Darwinism। अब दोनों एक एक बुक लिखे थे। लामार्क wrote Philosophic Zoology, Darwin wrote On the Origin of Species। तो ये दोनों बुक का नाम आपको याद रखना है, ये दोनों का थ्योरी का नाम आपको याद रखना है। लामार्क ने क्या क्या थ्योरी दिया था, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन्स दिया था, ठीक है। डार्विन ने क्या क्या थ्योरी दिया था, डार्विन का भी थ्योरी का नाम है दिया हुआ बुक में, ठीक है। तो दोनों, नेम ऑफ द बुक, नेम ऑफ द थ्योरी, व्हाट इज द थ्योरी, प्लीज एक बार देख लीजिएगा। हार्डी विनबर्ग इक्विलिब्रियम एंड इक्वेशन, जो उसने दिया था p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। और p प्लस q होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, जो हार्डी विनबर्ग इक्वेशन है उसको एक बार देख लीजिएगा। इक्वेशन लिखने बोलता है, एक्सप्लेन करने बोलता है, व्हाट डू यू मीन बाय द हार्डी विनबर्ग प्रिंसिपल। लास्ट थिंग इज ह्यूमन एवोल्यूशन। ह्यूमन एवोल्यूशन में देख लीजिएगा ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस इंपॉर्टेंट है, क्रो-मैग्नन, और एक और आपके 2018 के पेपर में आ चुका है। सो प्लीज जो मैंने लिखा है ऑस्ट्रेलोपिथेकस, होमो हैबिलिस एंड होमो इरेक्टस, निएंडरथल मैन, ये सब को पढ़िएगा। लेकिन पढ़ने का एक तरीका होता है, एक चार्ट बनाइएगा, आई एम श्योर आपके बुक में भी दिया हुआ होगा। वो चार्ट में क्या होगा, क्रेनियल कैपेसिटी होगा, व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द ब्रेन, ओके। सो तुम्हारा स्कल का कैपेसिटी कितना है, ओवर द इयर्स व्हाट वी हैव सीन that the cranial capacity has increased,
ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स इफ यू आर ट्रेसिंग एवोल्यूशन यू मस्ट ऑल्सो पे अटेंशन टू द क्रेनियल कैपेसिटी, कितना क्रेनियल कैपेसिटी था हमारे एंसेस्टर्स में और अभी हम लोग के पास कितना क्रेनियल कैपेसिटी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द पोस्चर एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दैट पर्टिकुलर stage of human evolution. Now with this we end section or unit 2. Unit 3 is biology and human welfare. We'll be starting that.